हमारे हिंदुस्तान की ये सभ्यता है कि हम कोई भी नया काम जब शुरू करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि 12th एडिशन है व्यापार राजस्थान का, तो हम ईश्वर की आराधना करके करते हैं, उनको सोच कर उनके बारे में आगे बढ़कर करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे सभी एमिनेंट गेस्ट से। सबसे पहले श्री ब्रिजेंद्र सिंह ओला जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी, श्रीमती उषा शर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान, श्री अभय कुमार जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, श्री कन्हैयालाल स्वामी जी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, श्री विंकेश गुलाटी, प्रेसिडेंट FADA, नहीं चलो। आपके शुभ कर्मों से ये लैंप लाइटिंग हुई है, तो निसंदेह ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही खूबसूरत होगा। और जो रिजल्ट हम सोच के यहाँ पर आए हैं, जो इश्यूज हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हैंडल होंगे, वो जरूर उनको एक नई दिशा देगी। थैंक यू सो मच। श्री विंकेश जी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रेजेंट बुके टू आवर ऑनरेबल मिनिस्टर। Shri Sai Girdhar ji, I request you to please present bouquet to Srimati Usha Sharma ji, Chief Secretary, Rajasthan. Shri Shavik Shah, I request you to present bouquet to Shri Abhay Kumar ji, Additional Chief Secretary, Transport. Can we hear it for him? Shri K.S. Gehlot, Chairman KS Group, I request you to please present bouquet to Shri Kanhaiya Swami ji, Transport Commissioner. Can we hear it for him? जोरदार तालियां हो जा सकती हैं। I now request Shri Shavik Shah to please come forward for the inaugural address. Namaskar, good morning. Honorable Shri Brijendra Singh Ji Ola, Honorable Chief Secretary Srimati Usha Sharma Ji, Shri Abhay Kumar Ji, Shri Kanhaiya Swami Ji, Mr. Vinkesh Gulati, President FADA, and Mr. Sai Girdhar, Treasurer FADA, and Nikun Sanghi Saab, our past President, my fellow dealers, distinguished speakers, event partners, and our guests. I extend a very warm welcome to this
conclave, we thank you all for joining us at Vyapar Rajasthan, change, adapt and sustain in the auto retail industry. This is the 12th edition of Vyapar, an auto retail conclave held by FADA at the state level. The current pandemic played a deterrent for us to hold this in the last 2 years, and we had to decide on this program at a very short time. I am grateful to all the distinguished guests, the members on the stage, and all the delegates here to accept our invitation on this short notice. I remember 10 years back, we were fortunate, we had a similar event organized, and we were fortunate, our Honorable CM Shri Ashok Gehlot, who was then the CM as well, who had presided over as a chief guest. Even today, Honorable Chief Minister wanted to be a part of this event and very much consented to his presence personally today. However, due to some unforeseen circumstances, he has regretted his personal presence. While doing so, he has shared a message to all of us here, which I would like to read out. He says, I am glad to know that the Federation of Automobile Dealer Association is organizing a state-level conference, Vyapar Rajasthan, on April 25 in Jaipur. The business fraternity in the state had to face a lot of hardships in the last 2 years on account of pandemic, and automobile dealers were no exception. COVID-19 brought a massive change in the state's economic landscape, and now we find ourselves at a crucial juncture. Conferences like these will help instill confidence among businessmen and entrepreneurs, besides paving the way for innovation in the automobile industry. I am sure that the conference will serve as a platform for state's automobile retailers and will help prepare the industry to face new challenges in the post-pandemic era. I am thankful to FADA for inviting me as the chief guest. I welcome all the participants and delegates to the Pink City and send my good wishes for the success of the event. Signed, Shri Ashok Gehlot. Keeping pace with the government of Rajasthan, the FADA Rajasthan chapter got together to support the state government in its effort to fight the COVID pandemic. Sir, we contributed 1.03 crores and were among the first organization to do so during the pandemic to the Chief Minister's Relief Fund. Besides this donation, many of our dealers worked together to support in the logistics of oxygen and oxygen cylinders during this pandemic. The Chief Minister personally complimented on a prompt and timely support. Distinguished guests, Ola Saab, FADA Rajasthan two-wheeler, cars, CV डीलर्स के लगभग 2000 आउटलेट्स को रिप्रेजेंट करता है. लगभग 90% डीलर्स आज इस संस्था के मेंबर हैं. अमूमन एक डीलरशिप पे एवरेज 100 लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है, और इस हिसाब से देखें तो हम लगभग 2 लाख परिवारों को सहयोग करते हैं. और ये जो हम करते हैं, उन्हीं के घर के आसपास, उन्हीं के गांव के आसपास हम उनको रोजगार देते हैं. एक कौशल विकास का ये एक बहुत अच्छा नमूना है. दूसरी बात, ऑटोमोबाइल रिटेल जीएसटी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है. लगभग 30% जीएसटी इसी व्यापार से आता है. 28% का हमारा मिनिमम जीएसटी दर है, और इसके अलावा लगभग इसी अमाउंट का हम सेस भी कलेक्ट करते हैं. ये वो सेस है जो आज वैट रिजीम के बाद जो आज कंट्रीब्यूशन सेंटर से स्टेट के डेफिसिट के लिए आता है, वो ये आता है. And it is only because of this that the central government is extending collection of this cess over and above the GST. GST के अलावा we also contribute to road tax. During this COVID pandemic, the average collection of road tax was close to 4,000 crores. While we talk of all this, we are not recognized for the indirect employment that we give. उन सब roadside workshops, machine shops
और जो एंसिलरी सर्विसेज हमारे डीलरशिप्स के साथ चलती हैं उनको भी हम रोज़गार देते हैं। उसके अलावा हज़ारों नौजवान फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जुड़े हैं जो हमारे ही व्यापार के साथ एक्सक्लूसिव बिजनेस करते हैं। सो रिकग्नाइजिंग दिस पोटेंशियल ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द ऑटो इंडस्ट्री, केंद्र सरकार ने ऑटोमोटिव मिशन प्लान AMP 2026 का एक बहुत बड़ा स्टार्ट किया है, which is the biggest engine of growth both for revenue and organized employment. It is in light of the above facts we are today seeking support of the state government to frame policies to not only accelerate this growth of auto retail in the state but also remove the impediments in the growth of this sector. माननीय मंत्री साहब, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश रहा है जिसने अग्रसर होकर काफ़ी सारे ऐसे नियम और कदम उठाए हैं। अगर मैं बात करूं पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की, राजस्थान was the first state to go for paperless registration, and this after Rajasthan was replicated by various states in the country. We want to congratulate you for your speed of reforms and our best wishes to continue to do so. हमने एक आपको याचिका दी है। We have submitted this memorandum for due consideration and we are happy that Honorable Minister Shri Vijendra Singh Ji Ola and Srimati Usha Sharma Ji, our Chief Secretary, with all senior colleagues are here to show their presence and the importance that the state government gives our business. मैं कुछ इन मुद्दों पे थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये डिस्टिंग्विश पैनल हमारी बातों को समझे और हमें सहयोग दे। पहला मुद्दा है, हमारे काफ़ी सारे वर्कशॉप्स रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित हैं और क्या है, जब वर्कशॉप में हमारे ग्राहक आते हैं वो ये भी उम्मीद करते हैं कि उनको नई गाड़ी देखने को भी मिले और उन शोरूम्स पे, वहाँ पे हमारे छोटे शोरूम्स भी बने होते हैं। 2014-15 में एक रिको की तरफ से सर्कुलर निकला था कि हम एक प्रोसेस के थ्रू इन शोरूम्स को चला सकते हैं। 2020 के बाद से मैम सर ये शायद रुका है। हम चाहते हैं कि उसको पुनर्स्थापित किया जाए। अमूमन डीलर्स, दूसरा मुद्दा, अमूमन डीलर्स MSME एक्ट में आते हैं और हम निवेदन करते हैं सरकार से कि हमें MSME या इंडस्ट्रियल दरों पे बिजली प्रोवाइड की जाए। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है यूज्ड कार्स या प्री ओन्ड कार्स का। जहां मोटर व्हीकल एक्ट नई गाड़ियों के लिए हमें एक कंप्लायंस देता है सेल, परचेस और रजिस्ट्रेशन का, वहीं यूज्ड कार के लिए कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ प्रावधान अपना स्टेट गवर्नमेंट अग्रसर होके इसको करे, ना कि इससे कंप्लायंस बढ़ेगा और आज जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर बना हुआ है, टैक्स का लॉस भी हो रहा है स्टेट को, वो भी कवर होगा। इसके अलावा राजस्थान स्टेट जो अपना टैक्स लेता है वो काफ़ी प्रदेशों के हिसाब से काफ़ी ऊंचा है, विच इज़ ऑलमोस्ट 25% ऑफ OTT जो चार्ज किया जाता है। अगर इसमें कुछ रियायत दी जाए और एक ट्रांजैक्शनल फीस ली जाए तो इसके कंप्लायंस में भी एक बढ़ोतरी होगी। तो आई एम श्योर दैट द स्टेट विल टेक cognizance of this and help us in enacting and give us respite. एक और मुद्दा है क्रिएशन ऑफ ऑटो जोन्स एंड क्लस्टर्स। इन हिज लास्ट टेन्योर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर had announced a cluster like this, an auto zones, which came up in cities of Junjunu and Kota. Unfortunately, when the regime changed, this was discontinued and we were not given any clusters. हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि ऐसे ऑटो जोन और क्लस्टर्स हर शहर में, मेजर सिटीज़ में बने। इससे ना ही एक अच्छा कस्टमर्स के लिए हमारे एक कन्वीनियंस रहेगा
पर वहाँ पे हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं जहाँ जो हम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं उनके लिए ट्रेनिंग, सेफ्टी के ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ हम इन जगह कर पाएंगे। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इन जोन्स के लिए भी कंसिडर किया जाए। आई एम श्योर आप इन मुद्दों पे एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग लेंगे और हमारा सहयोग देंगे। Friends, today, as we gather here to discuss various aspects of the auto retail industry, we've already witnessed a session on the future of auto retail with distinguished panel members like Mr. Sanjeev Kumar of Ashok Leyland and Shri Shashank Srivastava of Maruti. I'm sure this is setting the right tone for the day ahead, where we talk on important parameters like GST, gearing up for our financial prudence at dealerships, how insurance is important for our safety and operations, and of course, the scrappage policy, which again, our state has been one of the first to announce a policy, which again we compliment the distinguished team here. I once again thank Honorable Transport Minister Shri Brijendra Singh Ji Ola, Honorable Secretary Srimati Usha Sharma Ji, Shri Abhay Kumar Ji, Additional Chief Secretary, Home and Transport, Shri Kanhaiya Lal Swami Ji, Transport Secretary, distinguished guests, delegates, for joining us to this conclave today. Thank you very much. For the presidential address, please come forward Mr. Vinkesh Gulati, President FADA, for his address. Can we have here a big round of applause for him? Shri Vinkesh Gulati, President FADA. Shri Brijendra Ola Ji, Honorable Transport Minister, Srimati Usha Sharma Ji, Chief Secretary, Shri Abhay Kumar Ji, Additional Chief Secretary, Shri Kanhaiya Lal Swami Ji, TC, मंच पे आसीन मेरे डीलर भाई और दोस्त और बहनों और भाइयों, ऑब्वियसली बहनों और भाइयों बड़ा इशू वाला स्टेटमेंट है, बट फिर भी मैं आज यही यूज़ करना चाहूँगा। धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे इस सेशन में आए। आपकी जानकारी के लिए FADA एक एपेक्स संस्था है देश में, इकलौती ऐसी जो डीलर्स के काम के लिए आती है, और जिस भी चीज़ में मोटर लगी और टायर लगी हो हमारे वो मेंबर होते हैं। 2 व्हीलर से लेके ट्रक, इक्विपमेंट, कार सब आते हैं। ये हमारा एक रीजनल व्यापार का सेशन है जिसमें हम लोकल डीलर्स स्टेट वाइज करते हैं, जिसमें आप जैसी अनुभूति को बुला करके हम अपनी इच्छाएं या हमारी प्रॉब्लम का समाधान उम्मीद करते हैं करने का। वैसे तो राजस्थान ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, अक्सर मीटिंग्स होती रहती हैं हमारे सेक्रेटरी लेवल और TC लेवल पे, और हमारा काम होता रहता है। बट ऐसे एसोसिएशन में हमारे डीलर भाई जो दूर दूर तक रूरल और Tier 3 टाउन राजस्थान के आके आप लोग के साथ भी मिलते हैं और एक उनको भी कुछ ज्ञान अर्जन होता है कैसे स्टेट चल रहा है। तो क्योंकि मैं नेशनली देखता हूँ तो ये तो मैं मानता हूँ कि राजस्थान हमेशा ही अग्रणी रहा है हर नई चीज़ को लाने के लिए। CMVR रूल चेंज हुए थे कुछ मार्च 21 में, बट उसके पहले ही राजस्थान ने पेपरलेस रजिस्ट्रेशन कर दिया था। तो ये मेरे ख्याल से मैं रिक्वेस्ट करूँगा हम डीलर भाइयों को एक तालियों की गड़गड़ाहट से इसका राजस्थान का FADA हम डीलर भाइयों के लिए हमेशा ही काम करता रहा है और इसका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। अगर आपको पता हो BS4 से BS6 जब ट्रांजिशन हुआ था तो कोर्ट की रूलिंग की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था उस बीच में लॉकडाउन की वजह से, और FADA ने सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अपने डीलर भाइयों की प्रॉब्लम का निदान ढूंढा था और रजिस्ट्रेशन खुलवाया था उस समय, जबकि बाकी सारी एसोसिएशंस फेल कर गई थी। हम आज भी वर्क कर रहे हैं एक ऑटो डीलर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, क्योंकि हम एक फ्रेंचाइज हैं और इंडिया में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, जिसकी वजह से FADA आज भी लगभग 30 से 35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिल चुकी हैं, 8-10 मिनिस्टर्स से, जहां हम उनको अपनी व्यवस्था की बात बता करके एक सपोर्ट की डिमांड कर रहे हैं। एक जानकारी देना चाहता हूं, हम डीलर भाई लोग, जैसे शार्विक ने कहा, हम नॉर्मली किसी भी मैन पावर को डिस्प्लेस नहीं करते। हम जिस गांव जिस शहर के डीलर हैं कोशिश करते हैं वहीं के मैन पावर को रख करके उनकी स्किलिंग करते हैं, जबकि हम ऑफिशियली स्किलिंग सोर्स में नहीं आते। बट आपको पता होगा हमारे यहाँ
गुरु चेला जो टेक्नीशियन का चलता है वो जमानों से चलता आ रहा है। जब भारत सरकार स्किलिंग की बात नहीं करती थी, हम तब से स्किलिंग करते आ रहे हैं। और बहुत जगह पे हम अपनी जो कमर्शियल डीलरशिप है वहाँ ड्राइवर ट्रेनिंग के भी बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इधर कुछ सालों में ट्रक ड्राइवर्स के लिए कुछ ठीक हुआ है केबिन, वरना अगर मैं पुरानी बात करूं तो एक पटरे पे नॉर्मली ट्रक ड्राइवर बैठता था और 8-8 घंटे गाड़ी चलाता था। उस मामले में हमारे सारे कमर्शियल डीलर्स ने उनको बहुत सपोर्ट किया है और अक्सर ही उनकी ट्रेनिंग, उनकी सपोर्ट, उनकी वेलबींग के लिए कैटरैक्ट ऑपरेशन या उनकी आंखों का जांच कराना, ब्लड टेस्ट कराना, ये सब सोशल एक्टिविटी हमारे डीलर भाई लोग हमेशा करते रहते हैं। बट क्योंकि ये हम अपनी ड्यूटी मानते हैं तो इसलिए हम नॉर्मली इसका बखान नहीं करते कि हमने इतने लाखों लोगों का ट्रेनिंग किया वो की, लेकिन ये हमारी, कह लीजिए हमारी हैबिट में है कि ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। जब भी हम कोई भी वर्कशॉप में कैंप करते हैं, इस तरीके की एडिशनल एक्टिविटी, वो जैसे गाड़ी सर्विस होती है वैसे ही ये चीज़ें भी हमारी साथ साथ चलती रहती हैं। शार्विक ने एक बहुत 2-3 पॉइंट्स रखे थे, मैं उस पॉइंट्स को दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जब भी मैं राजस्थान के डीलर से बात करता हूँ मुझे समझ ये आता है, क्योंकि हमारा गुजरात पास में लगता है, हरियाणा पास में लगता है। गुजरात में लगभग 6% के आसपास का रोड टैक्स है, हरियाणा में लगभग 5 से 10% का रोड टैक्स है। इसकी वजह से हम डीलर्स का नुकसान तो होता ही होता है। राजस्थान राज्य का बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस है। 2 तरीके से है, रोड टैक्स तो मानी बात है लगभग 10-12% है, वो एक लॉस है गाड़ी पे। दूसरा जो स्टेट जीएसटी आप लूज करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और इन दोनों के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप जोड़ नहीं सकते। जैसे जब वो कस्टमर राजस्थान के डीलर से गाड़ी लेगा या गुजरात से लेगा तो एसेसरीज लेगा, इंश्योरेंस लेगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, बाकी सारी चीज़ें भी सपोर्ट लेगा। वो सारी इनकम राज्य के एंटरप्रेन्योर्स से बाहर के राज्यों पे चली जाती, जिसका कभी भी मूल्यांकन नहीं कर सकते, लेकिन एक ट्रायल करके हम चेक कर सकते हैं। अगर राज्य सरकार राजस्थान की कम करना चाहे टैक्स, बहुत अच्छा होगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा रेवेन्यू का इशू है तो कुछ एक टाइम के लिए, 1-2 महीने के लिए हम पास के राज्यों के हिसाब से टैक्स कम करके देखें तो आपको लगेगा कि हमारी सेल इतनी बढ़ जाएगी कि ऑटोमेटिकली जो आपका परसेंटेज की वजह से टैक्स लॉस होगा उससे शायद डबल फायदा होगा रेवेन्यू बढ़ने का। और इसका क्लियर है, आप लोग सब रोड पे देखते ही होंगे, जितनी प्रीमियम गाड़ी होंगी शायद 40 से 50% प्रीमियम गाड़ी में आपको राजस्थान का नंबर नहीं दिखेगा। आप कमर्शियल व्हीकल देखेंगे कम से कम 40-50% में आपको राजस्थान का नंबर नहीं मिलेगा। कहीं नागालैंड, कहीं पौंडीचेरी, जहाँ पे भी जिस तरीके का फ़ायदा मिलता है लोग वहाँ शिफ्ट होते हैं। इनडायरेक्टली ये स्टेट का लॉस है, क्योंकि एक बार वो कस्टमर वहाँ गाड़ी रजिस्टर करा लेता है, फिर वही का हो जाता है। काम यहाँ करता रहेगा लेकिन सारी गाड़ियाँ फिर वहीं रजिस्टर होती जाएंगी। एक तरीके से हमारा स्रोत जो है वो ख़त्म होता जाता है। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अभी केंद्र सरकार ने BH सीरीज़ लॉन्च की, अगर आप जाने तो उसमें उन्होंने गाड़ी की कीमत को प्री GST माना है। एक डबल टैक्सेशन की थ्योरी है, आप लोग सब जानते हैं। गाड़ी में 10 रुपये पे अगर 5 रुपये का GST लग रहा है, हम उसके ऊपर RTO टैक्स चार्ज करते हैं। एक तरीके से टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज करते हैं, जो हमारी जो लॉ है या जो एक्ट है उसी के अगेंस्ट हो जाता है। लेकिन गुजरात में जैसे इसके ऊपर नहीं लगता है तो वो और फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत समय से चलती आ रही है, लेकिन कभी ना कभी उसके लिए सोच के उसको सुधारने की ज़रूरत है। मेरी राज्य सरकार से अब मतलब फ्रैंकली हमारे लिए जितने लोग इसमें कुछ भी कर सकते हैं आज इस मंच पे आसीन है, और हम अलग अलग मीटिंग करके अलग अलग लोगों को समझाएं कि हम कहाँ फंसे हैं, क्या परेशानी है। शायद इससे बढ़िया मौका हम लोग को नहीं मिल सकता कि आप 4 लोग जो नीचे से ऊपर तक इसका डिसीजन ले सकते हो आज टेबल पे है। यूज्ड कार के लिए भी जो शार्विक ने कहा है, एक बड़ी प्रॉब्लम है ये कि आज भी 20 से 25% मार्केट सिर्फ ऑर्गेनाइज प्लेयर्स पे है। 75% मार्केट आप भी अगर कहीं घूमेंगे तो देखेंगे किसी पेट्रोल पंप पे 20 गाड़ी खड़ी है, किसी छोटे से वर्कशॉप में ऊपर एक तिकोना लगा के गाड़ी खड़ी है। 2 बड़ी प्रॉब्लम है। रेवेन्यू लॉस तो हो ही रहा है बिकॉज ये ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं है, ये आपको GST भी नहीं देते। आज की डेट में यूज्ड कार में 12 से 18% टैक्स है, डिपेंडिंग ऑन कि किस क्वालिटी की कार है।
ये जो लोग हैं ये नॉर्मली जीएसटी परव्यू में रजिस्टर भी नहीं कराते ना आपको टैक्स देते हैं। उससे बड़ा लॉस क्या है, वो लीगल है। ये गाड़ी किसी से भी खरीदते हैं, जैसे आपसे ली, और किसी को भी बेचते हैं, उसका ट्रांसफ़र, उसका सिस्टम, उसका प्रोसेस बहुत ठीक तरीके से नहीं करते जो एक डीलर या एक ऑर्गेनाइज प्लेयर करता है। इसमें बहुत सारी क्रिमिनल इश्यूज आते हैं कि हमने एक गाड़ी ली जिसके नाम से है, कुछ भी एक्टिविटी की क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं हुई है गाड़ी, और इनडायरेक्टली जिसकी गाड़ी वो फंसता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि गाड़ी जिसके नाम रजिस्टर्ड है, अगर किसी ने लेके भी कहीं चोरी की या डकैती डाली या खून किया, जिसके नाम रजिस्टर्ड है वहीं फंसता है। ये ओवरऑल लीगल लायबिलिटी भी फंसती है। तो इस पे एक डिस्कशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसका ऑर्डर, इसको एक समझने की ज़रूरत है कि आफ्टर ऑल इसको कैसे लाया जाए। ये जितने अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं इनको कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाए, इनको कैसे रोका जाए, अपने ट्रेड में कैसे सिस्टम लाया जाए कि जब मैं अपनी पुरानी गाड़ी किसी को दे रहा हूँ, फॉर सम टाइम वो मेरे नाम पे रहे जरूर, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रहे, और फिर ट्रांसफ़र ऑनलाइन हो जाए, तो जिससे ये पूरा प्रोसेस इजी चले और ये हमारी लीगल सेफ्टी प्लस रेवेन्यू का लॉस ना हो। मुझे लगता है मैंने अपना वक्त कुछ ज़्यादा ले लिया, लेकिन ये सारी जो हमारी कष्ट है, और मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था इतने अच्छे पैनल के सामने, इतने सीनियर लोगों के सामने। लेकिन ओवरऑल मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबका जो इस प्रोग्राम में आए, हमारे डीलर भाइयों से मिले, और मैं आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे डीलर भाई बहुत दूर दूर से, कोटा, अलवर तो खैर पास है, बट जोधपुर, जैसलमेर से आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज ऐसे महानुभावों से मिलके आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा और हमारे लिए भी एक अच्छी दिशा की तरफ लेके जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। I request him to please come forward for his address, and I request all of you कि जोरदार तालियों से श्री कन्हैयालाल स्वामी जी का स्वागत करें। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री श्रीमान ओला साहब, हमारी राजस्थान की माननीय मुख्य सचिव महोदया, हमारे परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, मंच पर विराजमान पाडा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष जी, राजस्थान चैप्टर के कोषाध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, उपस्थित राजस्थान के दूर दराज के कोनों से आए हुए ऑटोमोबाइल डीलर्स, डेलीगेट्स, एसोसिएशंस के अन्य प्रतिनिधि, उपस्थित देवियों, सज्जनों, मीडिया के प्रतिनिधि, आज के इस आयोजन में मुझे आपसे मुखातिब होते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। जैसा कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में और मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमारे परिवहन विभाग की यदि बैकबोन कही जाए टैक्स के मामले में, तो आप सब लोग जो मेरे सामने विराजमान हैं, इस दृष्टि से मैं आप शासन का जो सहयोग कर रहे हैं उसका सर्वप्रथम मैं आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कोरोना के समय में जैसा कि बताया, और मुझे हालांकि इस विभाग में आए हुए सिर्फ पिछले सप्ताह ही मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे जैसी जानकारी मिली कि आपने कोरोना पेंडेमिक के टाइम में राजस्थान के अन्य सभी विभागों से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सरकार का सहयोग किया, और विशेष रूप से जो सेकेंड फेज वेव के टाइम में जो ऑक्सीजन की कमी के समय आपने जो सहयोग किया उसकी कोई मिसाल नहीं बनती है। तो एक बार पुनः आपका इस दृष्टि से मैं इस अवसर पर, क्योंकि ये आपकी दृष्टि से भी आयोजन, जैसा कि मुझे बताया गया कि जयपुर में 2 साल पहले आयोजन होने वाला था और इस पेंडेमिक की वजह से आपने ये 2 साल आगे खिसकाते हुए आज ये आयोजन रखा है। मैं मेरी तरफ से पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। राजस्थान में जो परिवहन विभाग की दृष्टि से देखें, जो वन टाइम टैक्स की बात करते हैं, जो कि हमारे टैक्स रेवेन्यू का 50% से भी ज़्यादा 55% के आसपास आता है, वो सब आप लोगों के माध्यम से सरकार को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जीएसटी में भी करीबन 5,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर के माध्यम से आता है,
ऐसी दृष्टि से सरकार के दृष्टिकोण से देखें तो आपका जो रिटेल सेक्टर राजस्थान में फले फूले, उसका विकास हो, ये राज्य के और जनता के हित में है। इस दृष्टि से हम सरकार की तरफ से ये आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति हम हर समय गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए और उनका जो भी संभव सॉल्यूशन है उसका हम प्रयास करेंगे। अभी कुछ समस्याएं आपने परिवहन विभाग से संबंधित रेखांकित की, इसके अलावा कुछ समस्याएं अन्य विभागों से संबंधित भी हैं। अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं को भी हम ACS महोदय, ऑनरेबल CS मैम के माध्यम से हम उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे विभाग से संबंधित समस्याएं हैं, जैसा कि आपके राजस्थान चैप्टर के प्रतिनिधि 2 दिन पहले ही मुझसे मिले थे, हमने उन पर डिटेल में डिस्कशन किया था और मुझे खुशी है कि विभाग की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके संबंध में आपके प्रतिनिधिगण की भी ये सोच था कि विभाग हमारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक और तार्किक तरीके से उन पर मंथन करते हुए आगे कार्रवाई कर रहा है। कुछ जो पूर्व में मांगे लंबे समय से चल रही थी उनके संबंध में विभाग ने कार्रवाई भी की है, जिसमें विशेष रूप से जो टैक्स रिफंड का इश्यू था वो रिजोल्व हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो इश्यू था, जो कि स्टेट में कहीं भी रजिस्ट्रेशन की जो कार्रवाई है वो आपके स्तर पर हो, उसके लिए हमने NIC सॉफ्टवेयर में जो प्रोविज़न करना था उसके बारे में तीव्रता से कार्य चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में हम वो कार्रवाई कंप्लीट कर देंगे। इसके अतिरिक्त जो पॉल्यूशन से रिलेटेड या अन्य जो आपने इश्यू उठाए थे उनके संबंध में हमने इश्यूज़ टेकअप कर लिए हैं। एक जो मेजर इश्यू आपका जो रिटेल मार्केट जो यूज्ड कार्स का या यूज्ड व्हीकल्स का है, उसके संबंध में जो आपने मुद्दा उठाया है, उसके संबंध में मेरी विभागीय अधिकारीगण से चर्चा हुई और उनका ये मंतव्य है कि इस संबंध में कोई भी रूल्स रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर से जारी किए जा सकते हैं। तो इस संबंध में हम CS मैम की तरफ से, ACS महोदय की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट्स को पुनः लिखने का काम करेंगे, जिससे इस संबंध में भी कार्रवाई हो सके और स्टेट को कोई नुकसान नहीं हो और ये सेक्टर भी रेगुलेट हो सके। इस तरह से हम आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको निरंतर सुनने, समझने और उसके संबंध में कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन फिर भी इस अवसर पर मैं जो अन्य हमारे जो कंसर्न हैं, जो कि टैक्स के अलावा हैं, उनके संबंध में भी आपसे निवेदन करना चाहूँगा। अन्य कंसर्न्स में हम देखें तो रोड सेफ्टी हमारा इस समय सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ है। कोई भी व्हीकल जब भी रोड पर आएगा, सबसे पहले आपके माध्यम से उसका मालिक और व्हीकल दोनों आपके पास सबसे पहले पहुंचते हैं। तो उस समय मैं ये आपसे अपेक्षा करना चाहूँगा, या आपसे आशा रखूँगा या आप उसी समय से रोड सेफ्टी की दृष्टि से व्हीकल मालिक का ओरिएंटेशन जरूर करें और इस संबंध में जो भी प्रिकॉशंस हमें रखने हैं उनके संबंध में प्रॉपर उनको जानकारी देते हुए, चाहे वो लिखित में मटेरियल है तो वो भी आप उनको उपलब्ध करवाएं, ताकि जब वो व्हीकल मार्केट में या रोड पर रहेगा तो रोड सेफ्टी के सारे नॉर्म्स की पालना हो सके। इसी प्रकार एक दूसरा कंसर्न हमारा एनवायरनमेंट की दृष्टि से रहता है। तो एनवायरनमेंट के पर्पज़ से भी जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं उनके संबंध में भी आप जो भी मालिक आते हैं उनको ज़रूर ओरिएंट करें और रोड सेफ्टी की दृष्टि से हमें जो भी आपसे योगदान की अपेक्षा रहेगी उसमें हमारा सहयोग करें, ये भी मेरी आपसे आशा रहेगी। आज इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया और जो सम्मान दिया उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार हूँ। एक बार पुनः आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि परिवहन विभाग की तरफ से आपकी समस्याओं को प्रॉपर तरीके से टेकअप किया जाएगा और आपके सारे समस्याओं का निवारण का प्रयास किया जाएगा, इन्हीं आशा के साथ। और लास्ट में मैं आपके इस आयोजन की सफलता की कामना करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्री कन्हैयालाल स्वामी जी। जिस तरह से आपने बताया कि जो कंसर्न्स हैं वो वॉइस हो रहे हैं और उनके बारे में सोचा जाएगा, उसके लिए विशेष धन्यवाद। मिस्टर अभय कुमार, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम एंड ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, IAS राजस्थान 1992 और होम गार्ड जैन एंड राजस्थान स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एंड एक्स ऑफिशियो चीफ विजिलेंस कमिश्नर and Additional Chief Secretary Transport Department Rajasthan. He is also Chairman Rajasthan State Bus Terminal Development Authority. आप सभी से गुजारिश है कि जोरदार तालियों से स्वागत करें and I request him to come for the address please. जब मुझे आज इनवाइट किया गया था तो उस टर्म्स एंड कंडीशन में ये नहीं था कि मुझे कोई उद्बोधन देना है। मुझे ये कहा गया था कि आप आए
और हमारे कुछ इश्यूज हैं उसको आप सुने, ताकि जब कभी निर्णय लिया जा सके तो वो आपके ध्यान में रहे। खैर, मैं इस अवसर पे 2-3 इश्यूज हैं जिसको मैं फ्लैग करूंगा। अभी स्वामी जी ने करेक्टली रेज किया है, वो है रोड सेफ्टी का। परिवहन विभाग का नाम बदल के परिवहन एवं रोड सेफ्टी हो गया है, और रोड सेफ्टी इसलिए आवश्यक है और इम्पॉर्टेंट है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कि रोज जो एवरेज है 27 से 28 लोगों की डेथ होती है रोड्स पे, और रोड एक्सीडेंट्स में वाहन इन्वॉल्व हैं, और वाहन के डीलर्स मेरे सामने बैठे हैं। तो कुछ इश्यूज हैं, कुछ अपील है मेरी जिस पे मैं चाहूँगा कि आप लोग सामने आएँ। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माने, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माने, सिंपली अपनी जिम्मेदारी माने। 2-3 विषय हैं जिस पे मैं बिल्कुल फोकस रूप से, और ये जो आपके प्रतिनिधि आए थे उनसे भी मैंने बात की थी। लेट अस स्टार्ट विद टू व्हीलर्स। टू व्हीलर्स के संदर्भ में राजस्थान में आपका काफ़ी अच्छा पहल है, और एक जो BIS मार्का का हेलमेट है वो आप उस व्यक्ति जो खरीद रहा है वाहन उसको उपलब्ध कराते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि आप सामने आए और सजेस्ट करें, और हम इसका निस्तारण करें कि जो दूसरा भी हेलमेट है, क्योंकि 2 सीटर होते हैं ये, तो दूसरा भी BIS मार्क का ही हेलमेट वो ले। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और इसको हम कैसे इसका निस्तारण कर सकते हैं, जो भी कुछ सुझाव है उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अपन बैठ के उसको समझ सकते हैं। सेकेंडली, अभी रिसेंटली हमने सर्वे कराया था, ये भी रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, कि जयपुर में नॉन BIS हेलमेट्स कितने उपयोग हो रहे हैं और उनका क्या नुकसान है। सर्वे के बाद उसकी संख्या घट गई है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में नॉन BIS हेलमेट की संख्या काफ़ी है, और इसको एक रिप्लेसमेंट करने के लिए हमें एक ड्राइव चलाना है जिसमें आप लोग हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए, माहौल पैदा करने के लिए काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। तो ये अपील है फाडा से और बाकी आपके प्रतिनिधि से कि इस ड्राइव को हमें पूरे राजस्थान में चलाना है, क्योंकि जो 40% डेथ्स होती है, 41% टू बी एग्जैक्ट, जो 10,000 लोगों की डेथ हो रही है सालाना, उनमें से वो हैं जो टू व्हीलर्स पे रहते हैं। और हमारे बिजनेस के लिए भी अच्छा है कि इस प्रकार की घटनाएं आगे नहीं हो। सेकेंड इशू आते हैं जो 4 व्हीलर्स हैं, कार्स कह लें या SUV टाइप कह लें, उसमें मेरा ये सहयोग चाहूँगा, और अभी स्वामी ने भी कहा था कि जब कोई व्यक्ति आपके यहाँ वाहन खरीदने आए तो उसको कौन चलाने वाला है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसकी क्या सिमुलेशन हो सकती है, वो तैयार है नहीं तैयार है, स्पीड्स अधिक हो रहे हैं, कैसे उसको नियंत्रण रखना है। और एक आपकी इन सभी वाहनों में एक टेक्नोलॉजी आ गई है जो इसको बताता है कि चलाने वाला कैसे चला रहा है, बहुत ज़्यादा शार्प टर्न्स ले रहा है, ब्रेकिंग ज़्यादा कर रहा है। जब गाड़ी आपके पास सर्विसिंग आती है तो इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि फीडबैक आए कि साहब इस गाड़ी का जो उपयोग या ड्राइविंग हो रहा है वो ऐसा है जो आगे चलकर एक्सीडेंट्स की ओर इसका हो जा रहा है। आज की तारीख में पहले सेशन में मैं कुछ पहले आ गया था, सुन रहा था, डिजिटल टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई है, आपके वाहन में चिप्स को लेके काफ़ी समस्याएं भी आ रही हैं, लेकिन वहीं पर समाधान है कि जो व्यक्ति अपने वाहन को गलत चलाता है वो सारी जानकारी हमारे पास है, उसको हम कैसे शेयर कर सकते हैं, उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, उन व्यक्तियों को कैसे हम ओरिएंट कर सकते हैं कि वाहन सही ढंग से चलाएं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जब वाहन खरीदने आए, वाहन जल्दी बिक जाए ये तो आप भी चाहेंगे, बट सही व्यक्ति को बिके, वाहन चलाने वाला हो और सही ढंग से चलाए, इस पर अपना थोड़ा फोकस रखिए। बिजनेस को थोड़ा सा सोशली अपने को ओरिएंट करना पड़ेगा, ये अपील है मेरा। तीसरी एस्पेक्ट है जो अपने कमर्शियल व्हीकल्स है। कमर्शियल व्हीकल्स में ये पाया जा रहा है कि कमर्शियल व्हीकल चलाना इतना आसान नहीं है जितना समझ में आता है। जो वाहन बहुत भारी होते हैं, लोडिंग होता है, ब्रेक मारना बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। इसमें जो आज मैं देख रहा था हमारे कुछ ट्रक के काफ़ी बड़े डीलर्स के लोग बैठे हैं, हमें आपका इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग चाहिए कि जो हमारे बड़े बड़े ट्रॉला चला रहे हैं उनके जो ड्राइवर्स हैं, जो लोग उनको खरीदते हैं, उनकी ट्रेनिंग आप हमारे साथ बैठ के किस प्रकार से करा सकते हैं। बिकॉज इन वाहनों पे ये देखा गया है कि आपके गवर्नर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, वो उपयोग नहीं होता, और हाई स्पीड पे ब्रेक मारते हैं, फिर क्या घटनाएं होती हैं आप सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। छोटे वाहन ज़्यादा नुकसान पाते हैं, तो इसमें आपको एक चिंतन करना चाहिए कि इनको अपन कैसे सामने ला सकते हैं, इसका क्या फोरम बनाएं ताकि हम इसका उपयोग कर सकें। ड्राइवर ट्रेनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं वापस कह रहा हूँ, अभी मैं जब सुन रहा था तो मारुति से जो सदस्य श्रीवास्तव जी आए थे शायद,
वो कह रहे थे उनके पास पूरा डेटाबेस है, 2005 में वैगन आर किसने लिया वगैरह। मेरा मानना है हर कंपनी के पास होगा। आपके पास ये भी होंगे कि वो तो खैर हमारे पास भी है कि कौन से बड़े ऑपरेटर्स हैं, इनको हम कैसे पाबंद कर सकते हैं कि जो इसमें ड्राइवर्स हैं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही नहीं हो रही है। इसके नीचे वही चिप लगा हुआ है, वो बता सकता है कि लेफ़्ट राइट कैसे चला रहा है, लेन ड्राइविंग कर रहा है नहीं कर रहा है। इन सब इंफॉर्मेशंस का डेटाबेस आप हमसे शेयर करें ताकि लोगों को हम सेफ महसूस करा सकें। वर्कशॉप में ये सारी डेटा आपके पास आती है। और फाइनली एक इशू इसी से जुड़ा हुआ है एक्सीडेंट से, वो है कि एक ईडार करके प्लेटफॉर्म आ रहा है। ईडार का मतलब क्या है कि जो एक्सीडेंट के इंश्योरेंस क्लेम्स हैं वो सीमलेसली इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट से हो सके, उस ओर हम बढ़ रहे हैं। और जो 2-3 राज्य हैं जो पूरे स्टेट में सबसे आगे इसमें काम चल रहा है, उसमें राजस्थान का है, NIC के साथ कर रहे हैं, तो वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आपके बिजनेस का एनवायरनमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम पूरा सहयोग देंगे, लेकिन रोड सेफ्टी पे फोकस हमारे डीलर्स रखें और उसके लिए लोगों को ओरिएंट करें, उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जा सकता है, इस पे थोड़ा अपना फोकस रखें तो आपका भी बिजनेस बढ़ेगा और राजस्थान में भी ड्राइविंग सेफ रहेगा। यही कुछ ऑब्जर्वेशंस थे मेरे, और मेरा ये मानना था यदि आप सहयोग करेंगे तो इसमें काफ़ी कुछ किया जा सकता है। मैंने सोचा जब आपने बोलने के लिए विवश किया है तो रोड सेफ्टी के लिए अपील करूं कि आप भी सामने आए और हमारे। थैंक यू। Thank you so much, sir. Mrs. Usha Sharma, Chief Secretary of Government of Rajasthan. Ms. Sharma, a 1985 batch IAS officer, is the second woman to hold the top bureaucratic post in the state. Being in charge of the state secretariat, she believes in public participation in the administration and resolve people's grievances on priority. Prior to her return to her home state, she was on central deputation in New Delhi as Secretary of the Sports and Youth Affairs Ministry. She has also served as Additional Director General of Tourism and Director General of Archaeological Survey of India. जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मिसेस उषा शर्मा का फॉर हर एड्रेस। Honorable Minister of Transport and Road Safety, Shri Brijendra Singh Ola ji, Additional Chief Secretary, Home and Transport, Shri Abhay Kumar ji, Transport Commissioner, Shri Kanhaiya Lal Swami ji, Chairperson FADA Rajasthan, Mr. Shravik Shah, Past President FADA, Mr. Nikunj Sanghi, Treasurer FDA, Mr. Sahi Giridhar, friends who are present in the hall, and my friends from the media. A very, very good afternoon to all of you, and I really I'm grateful to the organizers of FADA to invite me and making me a part of this very, very important platform. I'm really grateful to each one of you. And when I was there attending the first function, the later half of the first discussion, it was such good learning for me, and I only wish I could sit the entire day to sort of learn about this sector, the nuances, the issues which are very, very relevant to this sector, and help in terms of resolving these issues. FADA, as I am told, is an organization which scientifically maintains and analyzes the vehicle registration, and which finally eventually helps in terms of adding to the growth of this country. The association, this time the annual event has been held after 2 years, obviously because of the COVID reasons, and the issues, and I was going through the sessions which have been organized by FADA are so important, like future of auto retail, then there is a discussion on auto retail and GST, then on financial prudence and insurance and
scrappage policy. I mean, I'm sure these issues are most relevant to this sector, and I'm also given to understand, which is like music to my ears, that Rajasthan is a pioneer state which trusted the capabilities of the dealers and authorized them to work as a registering authority. And I'm also told that we are the pioneer state where everything has become paper free, and this is my assurance to you and to Mr. Past President and the President as on today, that we'll be adding to these initiatives and going for more seamless operation of this industry, and whatever can be done to sort of ensure that we reduce the grievances, we ensure that the complete 100% comfort is provided to the dealer and to the owner. We'll work towards it. During COVID-19, all of you played a very, very significant and important role in mitigating this crisis. So we owe a big thank you to you, and we are very, very certain that in future also, you being a very, very members of the very important family of Rajasthan would continue to show the same commitment. My previous speakers, Additional Chief Secretary Home, and who's also looking after the transport part, and Commissioner Transport, have raised very pertinent issues in terms of, can this be thought as a corporate social responsibility when it comes to the safety measures which we need to adopt. This is actually a very, very big concern. As you would know that a week back, there was a very serious accident which took place in Jhunjhunu, where 11 people died and many got injured. So it's a huge concern. I mean, it was a sad accident, and a meeting was held at various levels. In fact, our Honorable Chief Minister himself held a meeting, and there was a lot of concerns which were shown that how to sort of reduce these road accidents, how to identify those vulnerable spots, black spots, what needs to be done where we can actually check these incidents, because when we are seeing the data, the last 3 years statistics shows that the number of accidents have not come down. We've improved on our infrastructure, roads have widened, roads have become much better, the speed has become much better, but in terms of bringing down these number of figures in the accident, we still have to cover a lot of distance. So there the role of all my friends who are there sitting in the hall becomes very, very important. How to sort of join hands in terms of educating people, sensitizing people, in terms of becoming more disciplined. Can this be a part of their DNA where they follow the correct norms? When we visit abroad, we see that the infrastructure is way ahead than ours, the speeds are way ahead than ours, yet the discipline is something which is highly enviable. Even when there is no one on the road, the driver will stop the vehicle, will wait, then start. So they're certain, they're very strict and very disciplined about the driving part. And that is how you don't get to see or don't get to hear these many accidents. So how do we work towards it? How do we ensure and inculcate this discipline? As my colleague Abhay mentioned, that why should a person compromise on the safety by buying a helmet which is not as per the standards? Why can't we do something about it? Why can't at the initial point he be told that you have to buy a BIS standard? It is for his good. So some of these aspects which I thought at the cost of repeating, like Swami's already mentioned, Abhi's already mentioned, but I thought I also need to reiterate once again that how do we work towards it? Mr. Shah and the other colleague from FADA has shown some major concern, very, very genuine concerns in terms of what the automobile industry is facing in terms of taxes, in terms of the old vehicles registration.
Mr. Sanghi was sharing his concern with me that when it comes to the old vehicles, we do not have a way to regulate them, and that is how when there is a crime which takes place, we are not able to track that. Can there be a mechanism in place where we are able to regulate this part as well? I mean, this is a very serious concern, and one of the concern which the previous speaker mentioned, that crime takes place, and even when the owner is not responsible, as per the Supreme Court directions, he becomes liable. So, and he may not even know. So, we need to sort of put our heads together, need to have a serious thinking on these issues, and can we sort of find a mechanism to address these issues. FADA Association representatives had met me in my office with a memorandum where they did raise certain requests like electricity rate, saying automobile dealers come under the industrial area and not covered under the MSME Act, yet electricity is being provided to dealers at a commercial rate. Then there was another request, tax on automobiles, as I've already mentioned. It should be brought at par with the rate applicable in the neighboring states. My earlier colleague mentioned, speaker mentioned that in a way we are losing a lot on the revenue, and are we actually benefiting by having a higher tax slab? Then the third concern was the creation of auto clusters and zones, and fourth was the pre-owned vehicles and showrooms on RICO. So these are, we also agree that these are concerns which ought to be looked into much detail. But on two issues, I would like to sort of make a mention that RICO is already developing hugely on auto zones. I would like to make a mention of Karoli in Bhiwadi and Pathredi in Bhiwadi, where RICO is developing auto component and engineering zone. They've already developed. And there is another one which is being developed in Salarpur in Bhiwadi, where the total area of the land is around 250 hectare, where this zone is being developed. And Hero Electronics, which is a big name in automobile industry, would be establishing their unit there. And I just want to emphasize on this that this issue is a huge concern for us as well, and we're aware of this issue, and we're taking all initiatives and measures in terms of promoting this industry. And electronic vehicle is the future of this country, and how do we promote this in Rajasthan is an issue where we are actually working towards. Then so your request that such clusters need to be developed. So it is our assurance that Rajasthan government is working towards it, and we would be adding more clusters in terms of developing these automobile zones. In terms of Mr. Shah mentioned that we need to have a showroom, like someone visits this area and there is no place where we can sort of display our vehicle. So Rajasthan, under the existing rules, I'll just read out for your benefit. RICO द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल रिपेयर एवं सर्विस सेंटर की स्थापना हेतु आवंटित औद्योगिक भूखंडों पर RICO disposal land rules 1979 rule 20C says that 25% of that land after the deposition of the fee can be converted into a showroom. I suppose this should solve your problem. And I would also like to make a request to the representatives of FADA that we're all there for you to help you out in
making this sector grow further, and we need to be the pioneer state in every aspect of this area. So I would suggest that we have a meeting with the organizers of FADA, and we would like to understand all these issues. We've understood it to some extent, but for the future growth, in terms of growth in this sector, in terms of taking some pilot projects for road safety, how do we sort of work towards to come up with a model which becomes a model at the national level to be replicated in all states? I would request some of you are big experts in this field, we could have a brainstorming session. We could sort of work towards what is, because end of the day it is us who have to solve this issue of issues concerning this sector, and also issues related to road safety. So how do we work towards it? I am all ears to you. Me and my team can sit one of these days, hear you out, you listen to our issues, we listen to your issues, and how do we get other domain experts who've done some excellent work or some knowledge partners in taking these areas of concern forward. Thank you so much, and I once again compliment the organizers for putting up such a great show, and the way you've sort of organized the panel. It's a great learning for all of us, and I'm again grateful to the organizers for inviting me and making me a part of this event. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Shri Brijendra Singh Olaji, Honorable Minister of Transport and Road Safety, Government of Rajasthan, senior politician of INC from Jhunjhunu district in Rajasthan. He was born in Ardawat village in Chirawa Tehsil of Jhunjhunu district. He was elected to 14th Vidhan Sabha of Rajasthan from Jhunjhunu constituency, the election for which was held in December 2013. Earlier, he was also an MLA in 13th Vidhan Sabha. Earlier, he has also held the post of head of Zilla Parishad of Jhunjhunu. He was awarded with the honor of the best MLA for 2017. In assembly elections held in December 2018, he was elected from Jhunjhunu constituency. Shri Brijendra Singh Olaji is son of famous leader Shri Sis Ram Olaji, and अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने और नए आयामों को छुआ है और वहाँ सस्टेन किया है. इसके लिए सर ज़ोरदार तालियां आपके लिए हो जाएं. मैं गुजारिश करना चाहूँगी माननीय मंत्री जी से कि कृपया आगे आएं और व्यापार राजस्थान और FADA के इस इनिशिएटिव पर बात करें. ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें. व्यापार राजस्थान 2022 के अवसर पर FADA द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में पधारी हमारे पूरे ब्यूरोक्रेसी की लीडर चीफ सेक्रेटरी मैडम उषा शर्मा जी, हमारे फाडा के नेशनल प्रेसिडेंट गुलाटी जी, आउटगोइंग प्रेसिडेंट साहब, फाडा के ट्रेजरर साई गिरधर जी, राजस्थान चैप्टर के चेयरमैन साहब, हमारे ACS होम एंड ट्रांसपोर्ट अभय कुमार जी, हमारे TC स्वामी जी, शाह साहब, रिस्पेक्टेड मंच, मेरे सामने विराजे हुए सभी प्रदेश के कोने कोने से आए हुए डीलर्स, जो फाडा के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, मीडिया के हमारे साथीगण, आपके निमंत्रण पर
जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आए हैं, जिन्होंने पहले वाले सेशन को संबोधित किया, उससे भी कुछ हमको सीखने को मिला। आपके गुलाटी साहब ने काफ़ी बातें रखी, बहुत सारी बातों का तो CS साहिबान ने आपको जवाब दिया है। आपने जो ये रखा कि पहले रिको में जो आपके वर्कशॉप थे उसमें आप व्हीकल डिस्प्ले भी कर सकते थे, तो रिलेवेंट रूल्स के बारे में मैडम ने आपको बताया है। आप 25% उसमें उसके लिए उपयोग कर सकते हैं, और उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मेरी अभी मैडम से बात हो रही थी, उसके लिए रिलेवेंट कार्रवाई मैडम के लेवल से रिको को हो जाएगी। आपके दूसरे इश्यूज हैं, जैसे आपका यूज्ड व्हीकल के बारे में है, आपका टैक्स के बारे में है। जो हमारी पड़ोसी स्टेट हैं विशेषकर उनमें कम टैक्स है, राजस्थान में ज़्यादा टैक्स है। उसके अलावा आपके जो क्लस्टर बनाने की बात थी, 2 डिस्ट्रिक्ट में बन गया, उसके लिए मैडम ने आपको बता दिया सारा डिटेल में कि रिको उसमें आगे बढ़ रहा है। आपने जो दूसरे 2-3 पॉइंट रखे, विभाग आपके लिए हमेशा तैयार है सुनने के लिए। हमारे टॉप ब्यूरोक्रेसी यहाँ बैठी है, परिवहन विभाग तो सारा ही आपके बीच में बैठा है। निश्चित रूप से आपकी बातें ऐसी हैं जो स्टेट के हित में हैं, और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमने आपके कई इश्यूज़ पर पहले भी सकारात्मक सोच रखते हुए निर्णय लिया है। आपका कोई भी इश्यू आया है, हमने उस पर काफ़ी मंथन किया है, और उसमें कोशिश ये की गई है, क्योंकि हम विभाग, आप और सरकार दोनों मिलके उसके अंग हैं। सरकार का ये सोच है कि वो आप पर कोई ये नहीं कि वो सुपीरियर है और आप दूसरे तरीके के लोग हैं। आप और सरकार मिलके विभाग को जो सहयोग देते हैं, उसी से विभाग आज अपने उपलब्धियां पूरी कर पाता है। पिछले 2 साल में जो कोरोना की दिक्कत रही है, उसमें आप लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। आप उस क्षेत्र एरिया से हैं जिन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, जैसे होटल इंडस्ट्री पर पड़ा है, टूरिज़्म पर पड़ा है, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और डीलर्स के ऊपर भी पड़ा है। तो उस समय भी इन सब के बावजूद आपने कोरोना में अच्छा काम किया, संगठित रूप से भी किया, राज्य सरकार के लेवल पर भी आपने अच्छी मदद करी। पर आप में से बहुत सारे जो डीलर यहाँ विराजे हुए हैं, चाहे तहसीलदार ने आपको कुछ कहा, चाहे SDM ने आपको कुछ कहा, कलेक्टर्स ने आपको कहा, आपने अपने लेवल पर वहाँ भी काफ़ी वो कदम उठाए हैं जो जनता को उस महामारी में से उबरने में सहयोग किया है। चाहे उनको आपने व्हीकल प्रोवाइड किए, चाहे दूसरे तरीके से आपने उनको सहयोग दिया। यही नहीं, आपने अपने अपने लेवल पर कई जगह लोगों को फूड पैकेट्स के लिए व्यवस्था की, लोगों को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए की, जो सरकार कर रही थी रोडवेज वगैरह बसों के माध्यम से। उसके अलावा भी आपने अपने लेवल पर की, उसके लिए तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूं राज्य सरकार से, कि आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आपके जितने इश्यू हैं, विभाग आपके साथ बैठेगा, आपके प्रतिनिधियों के साथ बैठेगा, जो विभाग के लेवल की बातें हैं उस पर विभाग निर्णय लेगा। दूसरे विभाग से संबंधित जो भी बातें हैं, चाहे फाइनेंस से हैं, चाहे इंडस्ट्री से हैं, चाहे दूसरे उससे हैं, उन सब के बारे में हम CS मैडम आपके बीच में विराजी हुई हैं, उनका सहयोग लेंगे, मुख्यमंत्री जी का सहयोग लेंगे, और आपकी बात highest लेवल पर हम रखेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि आपने जो अपनी जेन्युइन बातें रखी हैं उनका हम हल निकाल सकें। गिरधर साई जी ये मुझसे मिले थे, मैंने उस समय भी इनको कहा था कि आपके जो भी इश्यूज़ हैं आप हमारे ऑफिसर्स को लिख के दे दें, हम उस पर हमारा
होमवर्क कर लें और उसके बाद हम जिस लेवल पर जाना होगा उस लेवल पर जाएंगे। और ये आज आपकी कॉन्फ्रेंस है, यहीं तक सीमित नहीं है। आपको जब भी हमारे से कोई ऐसी इस तरह की बात करनी है, आप निश्चित रूप से हमारे ACS उपलब्ध रहते हैं, हमारे TC उपलब्ध रहते हैं। और हमने काफ़ी नवाचार भी किए हैं डिपार्टमेंट में, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन की हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि हमारे ACS हैं वो IT सेक्टर से ही डिग्री होल्डर हैं। तो हम हिंदुस्तान में पायनियर स्टेटों में हैं, जिसमें जैसे आप कह रहे थे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो गया, आपके बहुत सारे और टैक्स केयर ये सारी बातें ऑनलाइन हो गई। तो उसमें हम और उसमें अभी हमने लगातार 5 मीटिंगें डिपार्टमेंट में करके हमने उसमें जो लोकुना थे उनको दूर करने की हमने चेष्टा की है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपकी समस्याओं की उस पर मैंने आपसे निवेदन कर दिया। आपके प्रतिनिधियों से हम लगातार संपर्क में रहेंगे, जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो आप लाएंगे तो हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। टैक्स की आपकी बात पर मैंने अभी भी CS महोदय से चर्चा की थी। निश्चित रूप से वो बात आपकी उचित है। मुझे मेरी स्वयं की जानकारी में आया है कि काफ़ी हमारे व्हीकल अरुणाचल में रजिस्टर्ड होते हैं, जहाँ बहुत कम टैक्स है, शायद 2,500-3 हज़ार रुपये है कैसा ही, और वो चलते सब यहाँ हैं। उससे न केवल स्टेट को रेवेन्यू लॉस हो रहा है, बल्कि दूसरे तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं। तो हम इस पर CM साहब से भी बात करेंगे, फाइनेंस से भी बात करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि एट पार हम उसको ला सकें दूसरी स्टेट के जो है। तो रोड सेफ्टी के बारे में ACS साहब ने आपको काफ़ी विस्तार से बताया। बहुत कंसर्न है इस सब्जेक्ट, बहुत इस पर हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने इस पर मीटिंग बुलाई, काफ़ी उसमें उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि भाई आप इसमें हम कैसे मौतों को कम कर सकते हैं। राजस्थान में हर साल लगभग 10,000 से अधिक मौतें हो रही हैं, और 2 साल के जो कोरोना की महामारी थी उसमें इतनी मौतें नहीं हुई जितनी हर साल इसमें हो रही हैं। उसमें आप जैसा CS साहब ने आपको निवेदन किया, आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। आप ड्राइवर और उनकी तो करें ही कि कौन ले रहा है, कौन इस व्हीकल को चलाएगा, उसका डेटा आप रखें। पर आप थोड़ा अपने जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं डीलर से, उसमें आप कम से कम रोड ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनके बारे में तो आप बताएं। जिसको आप मान लो 2 व्हीलर दे रहे हैं, कार दे रहे हैं या कॉमर्शियल व्हीकल दे रहे हैं, तो आप एक ऐसा छोटा सा मैकेनिज्म डेवलप कर लें कि आप उसको जो व्हीकल दें उससे पहले ट्रैफिक रूल्स के बारे में उनको बता दें। जैसा मैडम कह रही थी, विदेश में तो ये स्थिति है कि पीली लाइट हो तो भी अगर कोई क्रॉस नहीं कर रहा है तो भी गाड़ी रुकेगी, और दोनों तरफ देखेंगे, सामने देखेंगे, फिर वो चलाएंगे। तो आप भी इस तरह का कोई लिटरेचर उनको दें, कोई बुकलेट दें जिसमें आप ये सारे ट्रैफिक रूल्स का उसमें समावेश करें। हो सकता है उससे आप पर कुछ आर्थिक बाहर आएगा, पर मानवता की सेवा में वो आपकी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। आप लोग, मुझे पता है, बहुत सारे स्ट्रेस झेल रहे हैं और सारा देश ही जो झेल रहा है, स्टेट भी उससे छूटा नहीं है। स्टेट के फाइनेंस पर भी बहुत बर्डन आया है इस महामारी का। तो मैं समझता हूँ कि अब धीरे धीरे आप भी उससे बाहर आएंगे, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। बिजली की बात आपने कही है कि भाई आपको भी कॉमर्शियल बिजली के बजाय इंडस्ट्री वाली बिजली मिलनी चाहिए। CS मैडम ने उसको एड्रेस किया है, आपके उस इश्यू को। अभी पिछले बजट में ही सरकार ने टूरिज़्म को तो इंडस्ट्री के बराबर ला दिया है। तो आपकी बात भी हम रखेंगे सक्षम स्तर पर, और आपका जो संगठन है जो उसको लीड कर रहे हैं उनको मैं पुनः ये
निवेदन करूंगा कि विभाग उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा, उनसे डिस्कशन के लिए, और डिस्कशन से जो डिस्कशन और डिलीवरेशन से जो बात उभर के आएगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि डिलीवरी उभर के आए। तो आप लोगों ने हम सबको सम्मान दिया, आपके विचार सुनने का अवसर दिया, और विशेष रूप से जो पैनलिस्ट ने से भी हमने सुना, हमारी नॉलेज भी उससे इम्प्रूव हुई। और मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। व्यापार आपका आगे बढ़े और 2 साल बाद आपका ये हुआ, अगली बार जब आपका ये सम्मेलन होगा तो आपकी जो ये आपने समस्याएं रखी, मैं मान के चलता हूँ कि राज्य सरकार का हर वर्ग के प्रति बहुत सकारात्मक सोच है, और टॉप ब्यूरोक्रेसी आपके पास बैठी है, सरकार का प्रतिनिधि मैं आपके बीच में हूँ, हम आपकी बात हाईएस्ट लेवल पर रखेंगे। कुछ न कुछ अगली बार जब आप मिलेंगे हमारे सरकार के प्रतिनिधियों से तो आपकी कुछ समस्याओं का हम हल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड ही वेरी हम्बल, इतने सहज भाव से आपने बात की, किस तरह से एक एग्रीकल्चरिस्ट आपके अंदर अभी भी है और आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोच रखते हैं ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल और रोड सेफ्टी के लिए, और जो आश्वासन आपने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां हो जाए माननीय मंत्री जी के लिए। I would now like to request Mrs. Rupali Shah to please come forward and felicitate Shri Brijendra Singh Ola ji, our Minister ji, and Chief Guest for the day. Can we hear it for her? Mrs. Rupali Shah, felicitating Shri Brijendra Singh Ola ji, Honorable Minister of Transport and Road Safety. Thank you so much, sir. May I now request Mrs. Sonali Aluwalia to please come forward and felicitate Srimati Usha Sharma ji, Chief Secretary, Rajasthan. Can you hear it for them? Srimati Usha Sharma ji, Chief Secretary, Rajasthan. I now request Mr. C.H. Shah to please come forward and felicitate Shri Abhay Kumar ji, Additional Chief Secretary, Transport. C.H. शाह जी के लिए और अभय कुमार जी के लिए तालियां हो जाए जोरदार। I now request Mr. K.S. Gehlot to please come forward and felicitate Shri Kanhaiya Lal Swami ji, Transport Commissioner. Mr. K.S. Gehlot. Mr. K.S. Gehlot, Chairman, K.S. Group. I request you to please felicitate Shri Kanhaiya Lal Swami ji. Can we hear it for them? Thank you so much. Mr. Nikun Sanghi, past President FADA and MD JS 4-Wheel Motors. Mr. Nikun Sanghi is MD of JS 4-Wheel Motors Private Limited, located at Alwar, Rajasthan. That is 3S dealers of M&M. He also manages 4S dealership of Hero Motorcorp. Mr. Sanghi has received numerous awards for his business performance and social work. Please put your hands together for him as he proposes vote of thanks for the inaugural session. Shri Nikun Sanghi ji.
परिवहन मंत्री श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी ओला, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्रीमती उषा शर्मा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम एंड ट्रांसपोर्ट श्री अभय कुमार जी, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट कन्हैयालाल जी, विंकेश गुलाटी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, साई गिरधर हमारे राष्ट्रीय ट्रेजरर और शार्विक शाह चेयरमैन, स्टेट चेयरमैन राजस्थान। बहुत खुशी का विषय है, बहुत सुनहरा अवसर है जब राजस्थान की टॉप लीडरशिप हम सब लोगों के बीच में है, और सराहनीय ये है कि ये सब कुछ संभव हुआ बहुत शॉर्ट नोटिस पे। इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग पधारे, हमारी बातों को सुना, स्वीकारा, बहुत बहुत आभारी हैं आपके। और ऑलरेडी आप पायनियर हैं, और आप लोगों के आश्वासन सुन के हमें पूरा विश्वास है कि राजस्थान ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इंक्लूडिंग रोड सेफ्टी में एक अग्रिम राज्य रहेगा पूरे भारतवर्ष में, और हम पूरा सहयोग करेंगे राज्य सरकार का, सारे ही डीलर मिलके, कि हम इस क्षेत्र में अग्रिम रहें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पार्टनर्स का, जिन्होंने इस अधिवेशन में हमको सहयोग दिया और ये संभव हो सका कि हम सब मिलके इकट्ठे होकर काम करें। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे सारे डीलर भाइयों का, जो इतनी दूर से, राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है, सैकड़ों मीलों की दूरियां हैं, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग पधारे, आप सब लोग आए। थैंक यू सो मच। फाइनली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा FADA सेक्रेटेरिएट का, जो हमारी सेंट्रल बॉडी है, जिसने रात दिन लग के ये इंश्योर किया कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली, सीमलेसली और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो सके। और राजस्थान टीम का, जो शार्विक शाह और साई गिरधर लीड कर रहे हैं, with the regional directors and all the other dealers and their teams, which ensured that we could do this program so wonderfully and capably. Thank you very much again, all of you. Thank you so much. Jai Hind. प्राचीन समय से एक प्रथा चली आ रही है, बैंक का काम है तो बैंक के पास आना पड़ेगा। ऐसा क्यों? एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी मंच पर विराजमान हस्तियों के लिए। Yes. Now I request Shri Sai गिरधर to please summarize the inaugural session. Chief Secretary Home and Transport, Shri Kanhaiyalal Swami ji, Transport Commissioner and friends. अगर मैं एक सिंगल लाइन में सेशन को समराइज करूं और ये कहूं कि ये सेशन राजस्थान व्यापार इज अ सक्सेस, तो मेरे ख्याल से ये अंडरस्टेटमेंट नहीं होगा। इस मंच पे जो डिग्नेटरीज बैठे हुए हैं, यही इस चीज़ का एक तरह से प्रूफ है दैट टुडेज सेशन इज़ 100% सक्सेस फॉर अस। एंड इनफैक्ट आज के सेशन से पहले ही, जब हम आज से करीब 20 या 25 दिन पहले जब हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस में गए थे, ये राजस्थान व्यापार का कॉन्सेप्ट लेकर के और अपने प्रॉब्लम्स को बताने के लिए, तो हमारे डीलर्स का एक मेजर इशू होता था, दैट वाज रिफंड। जब हम कस्टमर के बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन OTT का टैक्स भरते थे, जो कि वेरी करता है 2 व्हीलर से 4 व्हीलर के लिए, किसी के लिए 20,000 है, किसी के लिए 2 लाख है, किसी के लिए 5 लाख भी था, वो रिफंड हमें लेने के लिए मैम इट यूज टू टेक अस एटलीस्ट 6 months to an year, और किसी इंस्टेंसेस में निकुंज जी मेरे को देख रहे हैं, इवन ईयर्स हमारे को लगते थे रिफंड लेने के अंदर में। तो आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द डिपार्टमेंट फॉर इट, कि हमारे उस रिप्रेजेंटेशन देने में ही within probably 7 days we had the order from the department which stated
कि अगर आप कोई भी एरर से, किसी भी गलती से, कोई भी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई भी डबल एंट्री हो जाती है टैक्स की, तो डीलर को रिफंड डीलर के अकाउंट में मिल जाएगा इमीडिएटली, जैसे कि आप अमेजोन से और बाकी साइट से लेते हैं. सो इट्स बीन अ मेजर रिलीफ फॉर अस. सो प्रॉब्लली इस सेशन से पहले ही हमारा बेसिकली दिस सेशन वाज अ सक्सेस. विंकेश जी ने बात करी, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बात करी BS4 की और FADA का जो योगदान था. हमारे सबके पास में BS4 का स्टॉक था, पेंडेमिक आ गया था, लॉकडाउन लग रहा था, हम सबको वो गाड़ियाँ, अपने वाहन सारे के सारे बेचने थे. FADA ने जो करा, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया, वो तो है ही है, वो तो एक पार्ट है. कुछ डीलर्स को शायद अभी भी इस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है कि 27 मार्च को, इफ़ आई एम करेक्ट, 27 या 28 मार्च था, जबकि वाहन की साइट दिल्ली से बंद कर दी गई थी. NIC दिल्ली ने वाहन की साइट बंद कर दी थी, ये कहते हुए कि लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में. लॉकडाउन के अंदर में ये कमर्शियल व्यवसाय कैसे हो रहा है, आप गाड़ियाँ कैसे बेच रहे हैं और कैसे रजिस्टर करा रहे हैं. उस टाइम पे आई रिमेंबर आई वॉज द स्टेट चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट जो पूरी सरकार थी, वो पूरी सरकार हमारे साथ खड़ी थी. रात को 8 बजे वी वर रिक्वेस्टिंग अ लेटर from the transport commissioner, from the principal secretary transport, to direct MORTH to open Vahan site. And in fact we got a letter in favor of Nitin Gadkari ji at 8 o'clock in the night instructing them to open the site. और उस वजह से मेरे ख्याल से मैम करोड़ों रुपए के जो हमारा स्टॉक था, हम उसको कस्टमर्स के नाम से रजिस्टर करा पाए, उस स्टॉक को हम लिक्विडेट करा पाए. तो आज इस मंच के माध्यम से हम तहे दिल से राजस्थान सरकार को और आप सबको हम धन्यवाद करेंगे उस एफर्ट के लिए, क्योंकि आज अगर हम जहां हैं उसमें BS4 से हम आज निजात पा सके हैं, उसको हम पार पा सके हैं, उसमें बहुत हद तक हमारी राजस्थान गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है. एंड इनफैक्ट जब हम दूसरे स्टेट्स के अंदर में रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जैसा कि आपने बोला कि इट इज़ अ न्यूज़ फॉर यू रिगार्डिंग पेपरलेस एंड फेसलेस रजिस्ट्रेशन. हम पिछले 20 साल से मैम फेसलेस रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं. पेपरलेस के अंदर में राजस्थान इज अमंग्स द फर्स्ट स्टेट. इनफैक्ट MORTH ने 2019 में नियम बनाए, 2020 में उसको लागू किया, 2019 में नियम बनाए, 2021 में उन नियमों को लागू किया, जिसमें कि पूरे हिंदुस्तान में पेपरलेस फेसलेस रजिस्ट्रेशन का था. हमारे यहाँ पर हम पिछले 20 साल से इसको कर रहे हैं. तो हम दूसरे शहरों में जाकर के, दूसरे स्टेट्स में जाकर के राजस्थान के मॉडल को रेप्लिकेट करने के लिए उनको बोलते हैं. तो आपका तहे दिल से शुक्रिया इस चीज़ के लिए. एंड आई एम श्योर जो आपने इस मंच में आकर के जो आपने हमें प्रोत्साहन दिया है, जो आपने हमें इनकरेजमेंट के वर्ड्स कहे हैं, इस सब से इट विल डेफिनेटली हेल्प इंक्रीज आवर मोरल. हमारे पूरे ट्रेड को एक ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री मिलेगी. एंड जो आपने एश्योरेंसेस दिया है दैट आफ्टर दिस सेशन वी कैन कम एंड मीट यू टू डिस्कस अबाउट द बैलेंस ऑफ द थिंग्स. वी आर 100% श्योर कि उसके अंदर में भी ईच एंड एवरी जो हमारे इश्यूज हैं, चाहे वो OTT का हो विच इज़ अ मेजर कंसर्न, चाहे वो यूज्ड कार्स का हो. यूज्ड कार्स के लिए TC साहब ने ऑलरेडी बोला है कि वो MORTH को लेटर लिखेंगे. इट्स अ मेजर रिलीफ फॉर आवर दिस थिंग. एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा एज फार एज रोड सेफ्टी इज़ कंसर्न, FADA हैज़ बीन कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन रोड सेफ्टी. बट हमारा ये मानना है और हम इसको एक्नॉलेज करते हैं कि हमें इसके अंदर में और प्रयास करने पड़ेंगे. अगर हम सब मिलकर के एक एक भी एक्सीडेंट बचा सकें, एक एक भी अगर हम लाइफ बचा सकें, तो मेरे ख्याल से इसमें हमारे लिए एक सफलता की सीढ़ी होगी है. जहाँ तक कि हेलमेट का सवाल है, 2021 के अंदर में राजस्थान गवर्नमेंट ने हेलमेट का ऑर्डर निकाला था, जिसमें अब हम एक हेलमेट हर एक 2 व्हीलर के साथ में दे रहे हैं. मेरा ये मानना है, एंड सर आप फ्रॉम आवर साइड यू गॉट 100% सपोर्ट फ्रॉम द डीलर कम्युनिटी. अगर आप एक और ऑर्डर निकाल दें डायरेक्टिंग आवर OEMs टू गिव 2 हेलमेट्स इंस्टेड ऑफ 1, वी आर स्टैंडिंग विद यू with the government and we will ensure that it is implemented. बाकी issues मेरे ख्याल से आप सबने हमें time दिया है. We will 100% come back to you and we again thank you from the bottom of our heart. Time is up, so
We again thank you from the bottom of our heart to coming here and attending our session. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you so much, Mr. Sai Girdhar, Treasurer, FADA and Director Saisha Motors Private Limited. एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी एमिनेंट गेस्ट्स के लिए।